Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 3rd, plants around us. So in this chapter we shall learn about the different types of plant species that we see in our surroundings and how does we take care of our plants and our surroundings. All these topics we will discuss in our chapter. We should also know about the different categories of the plants, that is the shrubs, herbs, creepers and climbers. That's all the interesting topics we will discuss now. Students, let's begin the chapter. Chapter 3rd, plants around us. So student, get start. Arrange these in the given columns according to their correct categories. Now, students, here are the different names of the different species of the plants and you can categorize all of them in the each columns, that is the trees, shrubs, herbs and creepers. Now, let's start the exercise. First one is jamun. Jamun is come in the category of a tree. So fill here jamun. Next is mehendi. Mehendi is a herb. Next is mango. Mango is a tree. Next is cotton. But cotton is also a shrub. Next is muskmelon. Muskmelon बच्चों creepers की कैटेगरी में आते हैं. Next is rose. Rose is category in a shrub. Next is neem. Neem comes in herbs. Next is brinjal. Brinjal comes in shrub. Next is tulsi. Tulsi comes in the category of herbs. Next is bottle gourd. Bottle gourd comes in the category of creepers. Next is spinach. बच्चों spinach जो होता है वो हमारे herbs की category में आता है यानी पालक. Next is watermelon. Watermelon comes in the category of creepers. Now students, we fill the exercise. Now let's read the chapter. We all see different kinds of plants around us. Plants have different shapes and sizes. Most of the plants are green in color. Plants grow on land and in water. We see many types of plants around us such as trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. बच्चों हम अपने आसपास डिफरेंट काइंड्स की प्लांट कैटेगरीज को देखते हैं. प्लांट्स जो होते हैं डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइज के होते हैं, मगर ज्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर के ही होते हैं. कुछ प्लांट्स बच्चों जमीन पे ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे पानी में भी ग्रो होते हैं. हम प्लांट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज को देखते हैं? ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers. Now students, let's see an amazing fact. Trees helps to keep the air clean and our ecosystem healthy. ट्रीज क्या करते हैं? हमारी एयर को, हवा को साफ करते हैं और इकोसिस्टम को हेल्दी बनाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम द टॉपिक ट्रीज. Trees are big and strong plants. They have thick and strong stems called trunk. This trunk gives rise to many branches that bear leaves and fruits. ट्रीज हमारे बड़े बड़े मजबूत प्लांट्स होते हैं जिनका मोटा और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत तना यानी स्टेम होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं. ये ट्रंक से ही बहुत सारी ब्रांचेस मींस शाखाएं निकलती हैं. उन्हीं शाखाओं पे क्या आते हैं? लीव्स, पत्तियां आते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और फ्रूट्स आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ट्रीज. Banyan, mango and cashew etc. are some example of trees, and here are these images: banyan, mango and cashew. Now look an amazing fact. The banyan is the national tree of India. आप सभी को पता है जो बनियन है वो हमारा national tree है इंडिया का. Now students, let's see amazing fact. Some trees are branchless like palm, pine and coconut trees. They have only one main stem which bear leaves, flowers and fruits all by itself. बच्चों कुछ ट्रीज जो होते हैं वो ब्रांचलेस होते हैं, जिनकी ब्रांचेस नहीं होती, शाखाएं नहीं होती, जस्ट लाइक पाम, पाइन एंड कोकोनट ट्रीज. उनकी सिर्फ एक ही मेन स्टेम होती है जिससे लीव्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रो करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इज shrubs. Shrubs are small plants. They have woody stems with many thin, closely knit branches close to the ground. These plants live for several years. श्रब्स हमारे ट्रीज से छोटे प्लांट्स होते हैं. इनकी स्टेम्स जो होती है लकड़ी की होती है मगर पतली होती है, और इसकी जो ब्रांचेस होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली नेट मतलब कि एक दूसरे से
अंदर कह सकते हैं हम कि उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर से निकलते हैं और वो ग्राउंड के क्लोज होते हैं। बच्चों जो ये प्लांट्स होते हैं श्रब्स, ये हमारे कुछ ईयर्स तक के लिए सर्वाइव करते हैं। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ श्रब्स। रोज, जैस्मीन, कॉटन, हिबिस्कस, मेहंदी एंड सनफ्लावर एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जांपल्स हैं श्रब्स के, एंड हियर आर द इमेजेस ऑफ श्रब्स: रोज, cotton, mehendi, and sunflower. Next type of plant is herbs. Herbs are very small plants. They have soft, green, and delicate stems. Different herbs grow in different seasons. Most herbs live for a few months. बच्चों हर्ब्स जो होते हैं वो श्रब्स से भी छोटे प्लांट्स होते हैं, सबसे छोटे हमारे हर्ब्स होते हैं। इनकी सॉफ्ट होती है स्टेम, ग्रीन कलर की होती है, बहुत डेलिकेट होती है कि आप आसानी से इसे ब्रेक कर सकते हो। जो डिफरेंट हर्ब्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ही ग्रो किए जाते हैं। और बच्चों ये हर्ब्स होते हैं इनकी लाइफ स्पेन, लिविंग लाइफ कितनी होती है, सिर्फ फ्यू मंथ्स तक की ही होती है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ हर्ब्स। Wheat, rice, mint, spinach, coriander, tulsi, etc. are some common herbs. Now look at the images of herbs: wheat, rice, mint, spinach yani palak, coriander, dhania, tulsi. Now students, let's see an amazing fact. Herbs are also called seasonal plants. Herbs को बच्चों हम seasonal plants भी कहते हैं जो season के according grow करते हैं। Next amazing fact, a banana plant has a soft stem, hence it is a herb, not a tree. आपको पता है जो बनाना प्लांट होता है, केले का पेड़, वो बच्चों हमारे हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। वो हमने ट्री की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसकी स्टेम कैसी होती है, वीक होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लाइंबर्स। Climbers cannot grow straight. They need support to grow and stand upright. Climbers अपने से खुद से ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें किसी ग्रो करने के लिए, स्टैंड करने के लिए किसी सेकंड चीज की सपोर्ट की जरूरत होती है। वो वॉल भी हो सकती है, दूसरा प्लांट भी हो सकता है। They climb on other plants or objects. These are called climbers. इसलिए बच्चों हम इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। मतलब ये किसी और प्लांट का, ऑब्जेक्ट का सपोर्ट ले रहे हैं क्लाइंब करने के लिए। दे हैव वीक स्टेम्स, इसकी भी स्टेम्स मजबूत नहीं होती, तभी इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, मनी प्लांट, पी एंड बीन्स एक्सेट्रा आर सम कॉमन क्लाइंबर्स, एंड हियर आर द इमेजेस: ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी एंड बीन। बच्चों ज्यादातर हम क्लाइंबर्स को बेले कहते हैं। नेक्स्ट क्रीपर्स। क्रीपर्स ऑल्सो हैव वेरी वीक स्टेम्स, however they do not need any support and creep along the ground. क्रीपर्स की भी बहुत कमजोर स्टेम्स होती है, ये किसी के सपोर्ट से भी नहीं ग्रो कर सकते, न स्टैंड हो सकते, ये सिर्फ ग्राउंड पे ही क्रीप करते रहते हैं, उस पे ही स्प्रेड होते हैं, उस पे ही ग्रो करते हैं। So look at the examples: watermelon, bottle gourd and pumpkin etc. are some common creepers, and here are these images: watermelon, bottle gourd and pumpkin. ज्यादातर बच्चों क्रीपर्स के ऊपर हैवी फ्रूट्स आते हैं, तभी वो हमारे सिर्फ ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं। Now students, let's do exercise and become a champ. Match the columns A and B. Now first one is mango. Mango किस कैटेगरी में आता है? ट्री। फर्स्ट को मैच करेंगे C से। सेकेंड इज रोज। रोज बच्चों श्रब है, सेकेंड को मैच करेंगे ए से। नेक्स्ट इज मिंट। मिंट इज हर्ब, थर्ड को मैच करेंगे ई से। मनी प्लांट इज अ, मनी प्लांट क्या होता है? क्लाइंबर होता है, सो फोर्थ को मैच करेंगे बी से। वाटरमेलन इज अ क्रीपर, फिफ्थ को मैच करेंगे डी से। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वाटर प्लांट्स। प्लांट्स that grow in water are called water plants और aquatic plants। जो प्लांट्स हमारे पानी में ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम aquatic plants या water plants भी कहते हैं। Some water plants float on the water surface while some remain submerged। कुछ हमारे वाटर प्लांट्स वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, ऊपर तैरते हैं। कुछ हमारे वाटर प्लांट्स हमारे वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहते हैं, मतलब अंदर रहते हैं। लोटस, हाइड्रिला, वाटर हाइनाथ एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर प्लांट्स। Now look at these images: lotus, hydrilla and water hyacinth. Now how do plants grow? अब plants grow कैसे करते हैं आप सब सोचते होंगे, उसे हम समझते हैं। Most land plants grow from seeds. A seed needs good soil, enough water, air and warmth, that is sunlight, to grow into a plant. बच्चों ज्यादातर जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो सीड्स यानी बीजों से ही ग्रो करते हैं। सीड को अगर हम प्रॉपर गुड सॉइल में इनफ एयर, वाटर, सारे न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड करेंगे और सन की हीट उसे देंगे तो हमारा जो सीड है
धीरे धीरे वो प्लांट में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ let us see how a plant grows from a seed. Look at the first image. This is the first stage. A seed is placed under the soil. सबसे पहले हमने seed बीज को soil के अंदर place करा. Second stage. When the seed gets the right amount of water, it opens and a small baby root grows out. जब हम seed को proper water देंगे तो उसके अंदर से छोटी सी root निकल आएगी. Third stage, then the baby stem called the shoot grows out. रूट के बाद उसकी स्टेम आती है, उसे हम शूट कहते हैं. नेक्स्ट इज द रूट ग्रोज लॉन्गर, द शूट ऑल्सो ग्रोज लॉन्गर. उसके बाद रूट भी बड़ी होने स्टार्ट हो जाती है अंडर द ग्राउंड और शूट भी ग्रो होने स्टार्ट हो जाती है अबव द ग्राउंड. द शूट टेक्स इन सनलाइट एंड एयर, बिकम्स द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द न्यू प्लांट. इट ग्रोज इनटू वन स्मॉल प्लांट. बच्चों जो शूट होती है, जब उसे सनलाइट मिलती है, हवा मिलता है, पानी मिलता है, तब वो ग्रो होने स्टार्ट होती है और फिर उसके ऊपर स्टेम आती है, स्टेम से लीव्स आने स्टार्ट होते हैं और तब वो एक छोटे से स्मॉल प्लांट में डेवलप हो जाता है सीड. नेक्स्ट द स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. जैसे उसे सारी कंडीशंस मिल पाती हैं तब वो एक बिग प्लांट में डेवलप होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यू वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज ट्रंक. दैट मीन्स द हार्ड एंड थिक पार्ट ऑफ अ ट्री. जो हमारे पेड़ का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, मोटा हिस्सा होता है, उसे हम ट्रंक कहते हैं. शूट मीन्स द बेबी स्टेम दैट कम्स आउट ऑफ द सीड. जो बेबी स्टेम हमारा बीज के अंदर से निकलता है उसे हम शूट कहते हैं. सबमर्ज मीन्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. जो हमारे वाटर के सरफेस के अंदर होता है उसे हम सबमर्ज कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल. Look at the first point. Trees have thick and strong stems called trunks. ट्रीज की बच्चों मोटी और मजबूत स्टेम्स होती हैं जिसे हम ट्रंक कहते हैं. रोज, जेस्मीन एंड हिबिस्कस एक्सेट्रा आर श्रब्स. कुछ हमने अपने श्रब्स के बारे में भी समझा था. डेट इज रोज. मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स. जो हर्ब्स होते हैं ज्यादातर कुछ महीने तक ये लिव कर पाते हैं. क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड स्टैंड अपराइट. क्लाइंबर्स को बच्चों सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और सीधा खड़ा होने के लिए. Plants that grow in water are called water plants or aquatic plants. जो plants हमारे पानी के अंदर grow करते हैं उन्हें हम water plants या aquatic plants कहते हैं. Now students, it's exercise time. Let's do exercise A. Take write the correct option. Now you can read this statement and choose the right one. First, these plants live for some years. कौन से plants some years तक live करते हैं? Trees. C is the right answer. Thick and strong stems of plants are called trunk. B is the right answer. Mint and spinach are herbs. C is the right answer. It is not a herb. इसमें से बच्चों कौन सा herb नहीं है? रोज, wheat या मेहंदी. बच्चों हमारा रोज herb की कैटेगरी में नहीं आता. A is the right answer. Creepers have. Creepers की stems कैसी होती है? Weak होती हैं. A is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. First, trees helps to keep the air dash. Air को क्या करते हैं? Trees clean and our ecosystem healthy. Now next, shrubs are dash plants. Shrubs कैसे हमारे plants होते हैं? Small plants. Most herbs lives for few months. Next, climbers need dash to grow and stand upright. Climbers को किस चीज की जरूरत होती है? Support. Plants that grow in water are also called dash plants, water plants or aquatic plants. Now students, let's do exercise C. Write T for true and F for false statement. You can identify the true and false statement. First, shrubs are smaller than trees. Yes, it is true. Herbs grow only in summer. Herbs सिर्फ summer season में grow करते हैं. No. Seasonal plants होते हैं, ये different seasons में different herbs grow करते हैं. So it is false. Creepers can't stand erect. Creepers खड़े हो सकते हैं. No, it is false. Creep करते हैं वो ground में. Pea plant is a climber. Yes, it is true. Very big plants are called herbs. No, it is false. It is called trees. So it is false. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.